All right, G. So this is October-November 2023, 4-1. Again, case study. And today I hope that we are able to write at least the last question, which is probably 8 marker, 10 marker, or whatever, 9, 7 marker, 8 marker. ठीक हो गया जी. इसको जरा देखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं. In Japan 2020, Japan suffered its third quarterly decline. सबसे पहले जरा ये पढ़ा करें. Economic decline in 2020. Its third quarterly decline in GDP in a row. The size of its real GDP shrank to its lowest level since 2011 when the country was suffering from 20 years of deflation. 20 साल की deflation. लगातार deflation, कीमतें गिर रही हैं. And economic stagnation. In 2020, the economy was not helped by a previous increase in sales tax, the COVID-19 pandemic, and the trade war between the world's biggest economies, US and China. They were Japan's two most significant trading partners, 19% US के साथ, 19% China के साथ. ठीक है जी, कुछ दिया हुआ है सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट वगैरह देखेंगे बाद में. In 2020, the IMF warned that the global economy was facing its worst recession since the World Depression in the 1930s. Japan's economy shrank by 7.8% between April to June. ठीक है. While the US economy contracted by 9.5% and China by 3.2%. ये तो खैर कोविड की वजह से होगा ना mainly. Japan, which had the world's fourth largest exporter, incurred an overall trade deficit of इतना billion. ठीक है जी, क्या आ गया? Japan जैसा country trade deficit. An increase of almost 50% on trade deficit in 2018. In Japan, 2020, exports fell by a further 18% in the third quarter, mainly caused by declines in motor vehicle exports. जारी बात है, अब तो और बुरा हाल होगा क्योंकि अब आ गया China. In that quarter, its main car producer, one of the world's biggest car company, made its smallest quarterly profit in 9 years as sales halved. ये कौन है? Toyota. The government of Japan used expansionary fiscal policy and monetary policies to try to stimulate the economy. Low interest rate had been used by central banks since 2016. In August 2020, economists said that despite the stimulus to encourage growth, there was a chance economic activity may stagnate even further if major nations again adopted more restrictive measures such as lockdowns to combat the recurrence of. With reference to table 1.1, what indicates that Japan's government had borrowed substantially? Trade deficit, वो तो reason है. क्या indicate कर रहा है? हो सकता है trade deficit भी. सबसे पहली चीज तो main चीज आ गई. National debt. सबसे बड़ा क्या है? National debt as a percentage of GDP. पहले 236% ऑफ जीडीपी था. जीडीपी अगर 100 मिलियन है तो 236 मिलियन उन्होंने लोन लिया हुआ था. फिर 234, 236, 237. एक तो नेशनल डेट हो गया. दूसरा क्या पता चल रहा है कि डेट बहुत ज्यादा लिया हुआ है. इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक कर सकते हैं. जब आप डेट बहुत ज्यादा लेते हो, बहुत ज्यादा लोन लेते हो, तो आप क्या करते हो? The government sells what? Government sells bonds. ठीक है, जब bonds बहुत ज्यादा बेचेगी तो क्या होगा? बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी. बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी तो रेट ऑफ रिटर्न उसका बढ़ना चाहिए. उस केस में यहां तो गिर रहा है. ये उसको सपोर्ट नहीं है सच कर रहा. नेशनल डेट ही है मेनली. क्या कहते हैं? सिर्फ नेशनल डेट लिखने की इसको जरा थोड़ी सी कोशिश करते हैं. रफली क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन दोबारा देख लें. What indicates that Japan's government had borrowed substantially? An indication that Japan had borrowed substantially is shown in table 1.1 as national debt, which is given as a percentage of GDP. This percentage is approximately around 237% of its GDP. Implying that Japan has borrowed more than 2 times of its national output. 2 times ज्यादा बोरो किया हुआ है. समझ रहे हैं बात को? 10 बिलियन अगर है तो जापान ने
237 बिलियन 23 बिलियन। 10 बिलियन अगर जीडीपी है, 23 बिलियन उसने क्या किया है, लोन लिया, इतना डेट। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? और कुछ है इंडिकेशन कि डेट ज्यादा है? चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कह नहीं सकते, रिटेल प्रोडक्शन कह नहीं सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ कह नहीं सकते, इंटरेस्ट रेट्स का भी कोई खास लिंक बन नहीं रहा। क्या ख्याल? दैट्स इट। चलें। ऑलराइट जी, इज दिस क्लियर? बस देखिए फिर, हो सकता है गलत हो, ठंडा हो जाए हमारा। पब्लिक डेट, इट हैज बीन मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ जीडीपी। तो वही बात है, ट्वाइस द साइज ऑफ जीडीपी है और पब्लिक डेट है। वैसे वो पब्लिक डेट नहीं कह रहा, वो नेशनल, एक ही बात है, नेशनल डेट पब्लिक डेट एक ही। डू वी गेट इट? इज दिस क्लियर? ये तो बहुत आसान था, मुफ्त के दो नंबर है। Although Japan was the fourth largest exporter, it had suffered trade deficits. Explain how this might have happened. Japan was the world's fourth largest exporter. It had suffered trade deficit. Explain how this might have happened. फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, और जापान की बात हो रही है, तो ऊपर से भी रीजनिंग उठानी है। लॉजिक क्या हो सकती है? एक तो पेंडेमिक की वजह से ऊपर लिखा हुआ भी था, ये देखें किधर लिखा हुआ था, ये। दूसरा, ट्रेड वॉर चल रही थी इनकी, यूएस और चाइना की, जो कि इसके अप्रोक्सीमेटली कंबाइंड अप्रोक्सीमेटली 40% जो उसका ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, 40% के वो आपस में लड़ रहे हैं और ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। फिर कोविड-19 और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था, सेल्स टैक्स बढ़ाया, कोविड-19 हो गया, ये एविडेंस मिल गया हमें इधर से, और ट्रेडिंग पार्टनर्स का मसला। तीन मसले आ गए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स इलास्टिक हैं, तो थोड़ा सा ये रेफरेंस दे देना, ट्रेड डेफिसिट 15.2 बिलियन से, उसने डेट दी हुई है कोई? नहीं। बहरहाल आप इस टाइम पीरियड का रेफरेंस दे देंगे कि 15.2 बिलियन से किधर चला गया उसका ट्रेड डेफिसिट, 19 में 50% ऑन द ट्रेड डेफिसिट, 50% इंक्रीज आया 2018 से 2019। एक्सपोर्ट्स फिर फर्दर गिरी, और क्या वजह थी? मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट्स। तो चार वजहें हमने देख ली, एक हमने डेटा बता दिया, ठीक है, एक हमने क्या बता दिया, डेटा बता दिया कि कितना गिरा, दूसरा हमने वो कार मैन्युफैक्चरर की सेल्स गिर गई। आते हैं, पहले तो एविडेंस इकट्ठा करें ना ऊपर से, फिर पेंडेमिक, फिर सेल्स टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई होगी, और पांचवा ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर से क्या लिंक है? वो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, 40% ट्रेड ऑलमोस्ट उनके साथ अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 40% वो कर रहे हैं। अब आ जाए लॉजिक पे। एक तो ये रीजन हो सकता है कि आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है, ठीक है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जापान की करेंसी हमें वैसे भी पता है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत डी वैल्यूड है। दूसरा क्या रीजन होता है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे कि पाकिस्तान में सड़कें खराब हैं, प्रोडक्टिविटी लो है, वो भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी चक्कर नहीं है। तीसरा, ट्रेडिंग पार्टनर्स की इनकम गिर जाए, वो हमने जिक्र कर दिया है। ट्रेड वॉर हो रही है, ट्रेडिंग पार्टनर्स खुद सफर कर रहे हैं, और पेंडेमिक के साथ भी उनकी इनकम को जोड़ सकते हैं। मेरा ख्याल से 4 नंबर के लिए बहुत होना चाहिए, क्या कहते हैं? और कुछ लग रहा है? A2 की केस स्टडीज आसान है, ज्यादातर बस ऊपर से उठाना है मटेरियल, आधे नंबर, आधे से ज्यादा नंबर तो आपको वहां मिल जाते हैं। एएस में ऐसा नहीं था, एएस में वो पॉसिबल कॉजेस बताता था, एएस के डिफरेंट, आपका ज्यादातर एनालिसिस और वैल्यूएशन खुद से होती, थोड़ा बहुत एविडेंस ऊपर से उठाना। 1 मार्क फॉर रीजन, 1 मार्क फॉर एडेड डेवलपमेंट। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स मस्ट हैव एक्सीडेड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये बताना है कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है।
ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब बताना है, हमने नहीं सोचा ये लाजमी है कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब तो बताएं। could have been affected by price elasticities of exports and imports, ये तुम कह रहे थे लेकिन मैंने इग्नोर किया। Loss of export sales reflecting declining industrial production in Japan, example Toyota cars। Number two, tension between trade giants, तो ये हो गया वो टोयोटा वाला पॉइंट। ये हो गया ट्रेडिंग पार्टनर्स 19% ऑफ एक्सपोर्ट्स ईच, वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम्स गिर गए दो, एक्सेप्ट एनी अदर वैलिड रीजन। तो ये दो तो हमें मिल गए उधर से, 3 नंबर तकरीबन, बाकी खुद भी अकल लगानी थी। ठीक है, और ये बताना था कि पीडी भी डिफरेंट हो सकती है, और वो बोल भी रहा था लेकिन तुम इग्नोर कर रहे थे इसकी बात, वक्त पे कदर नहीं की बाकी। और बताने डेफिसिट है क्या, इससे आसान देखा है कुछ कभी जिंदगी में? ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो क्लास 2 का बच्चा भी कर सकता है। हाँ, दे देंगे, वो मॉक भी आसान होगा। आ जाएंगी। कंसिडर वेदर एनालिसिस आ गया, एवेल्युएशन आ गई, 2 साइड्स आ गई। द एविडेंस प्रोवाइडेड शोज दैट, एविडेंस वाली बात, ठीक है, that Japan's economic decline in 2020 was caused by COVID-19 pandemic। पहले बताएं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक बहुत बहुत बुरी चीज है, बहुत खराब कर दिया था, फिर बताएं ऐसा नहीं है, वो तो बाद में करेंगे ना। नहीं, अभी लिखेंगे ना। अच्छा, सबसे पहले तो बता दें, कोविड-19 पेंडेमिक आया और उसने इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया, ट्रेडिंग पार्टनर्स की इनकम भी गिर गई होगी, लॉकडाउन लग गए होंगे, ट्रेड ओवरऑल खत्म हो गया होगा, क्योंकि जापान का मेजर ट्रेडिंग नेशन है, तो बेस्ड ही उस अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड पे कर रहा है जीडीपी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। थोड़ा और कोई एविडेंस देखें, कार प्रोडक्शन भी गिर गई, ये भी कम हो गई, रिटेल सेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आई। ठीक है, और रिटेल सेल्स, एक चीज मैंने नोटिस की है, पेंडेमिक कब आया था? 2020 में, 19 का एंड 20 में, तो इधर तो पहली हालात खराब है। ठीक है, कैन यू टर्न ऑन दोस लाइट्स, ऑल द बटन्स, यस। हाँ जी, 2020 में आया ना पेंडेमिक, तो यहां तो पहली बेड़ा गर्क हुआ है, ये देखें 2020 से तो पहले ही फारिग हुआ है। एक और मैंने एविडेंस देखा कहीं, ये ट्रेड डेफिसिट तो पहले ही 50% गिर गया था 2018 में, पेंडेमिक तो दूर था, पेंडेमिक का तो अभी जेनोगुमान में भी नहीं था पेंडेमिक। ठीक है, और क्या है, और कोई एविडेंस है? ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी कम हो रही थी, ठीक है, इनकम्स गिर रही हैं इसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में बिटवीन अप्रैल एंड, लेकिन ये तो 2020 में हो रहा है, ये सपोर्टिंग एविडेंस है, समझ रहे हैं, ये सपोर्टिंग एविडेंस है। और क्या सपोर्टिंग एविडेंस है? ये एक और आया, the size of GDP shrank to since 2011, नहीं ये तो 2020 है ना, ये भी सपोर्टिंग एविडेंस है कि साइज ऑफ जीडीपी गिर गया, ये सपोर्टिंग एविडेंस हो गया। सपोर्टिंग एविडेंस में और क्या है कि हम वैसे भी बताएंगे कि ट्रेड कम हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी गिर रही होगी, इधर से मैं ये इंडस्ट्रियल आउटपुट भी उठा लूंगा। चेंज इन रिटेल सेल्स, कंजम्पशन भी गिर रही है, इन्वेस्टमेंट भी गिर रही है, थोड़ा सा कोई नॉलेज फेंकें और क्या करेंगे, एडी गिर रहा है, एडी गिर रहा है, साथ ही क्या फिट कर दें, नेगेटिव मल्टीप्लायर भी होगा, मल्टीप्लाइड इफेक्ट आएगा। वैसे ही ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, खाली मेंशन कर दें। तो ये हो गया हमारा सपोर्टिंग एविडेंस कि जापान के हालात बहुत खराब थे और पेंडेमिक की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। फिर बताएंगे नहीं, पेंडेमिक की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हालात पहले ही खराब थे, पेंडेमिक तो आया 2020 में, और उससे पहले ही आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये 2016 17 18 में
चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना था? कुछ भी नहीं था। फिर 17 में अच्छा खासा था, फिर गिर गया, 19 में फिर गिर गया, ये भी 17 में थोड़ा सा बेहतर हुआ है, फिर गिर गया, फिर और बहुत ज्यादा गिर गया, बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया 2019 में। समझ रहे हैं? तो पेंडेमिक तो 2020 में आया है। डू वी गेट इट? तो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। डू वी गेट इट? Answers need to see Japan's economic decline in 2020 exaggerated by the coronavirus. Exaggerated by the IMF figures on the global economy. IMF figures on the global economy. ये वाले किधर गए IMF figures? ये कि ग्लोबल इकोनॉमी भी तो श्रिंक कर रही है और उसके ट्रेडिंग पार्टनर सारे फारिग हो गए और ग्लोबल इकोनॉमी भी श्रिंक कर रही है। 2020 lockdown worsened domestic consumption, export trade, industrial such as industrial car, but decline was part of much longer term decline in the economy. Figures from the table. Quote figures from the table, और वो तो पुराने, reference to 2 decades of decline, 2011 ऊपर था ना, 2011 से सीन ऑफ हुआ है उसका, तो डिफ्लेशन है और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है। 2019 में सेल्स टैक्स लगा है, उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वही ना सारा ऊपर से, क्योंकि जापान का नाम ले लिया ना उसने स्पेसिफिकली। इसमें एविडेंस का ये वो वाला सवाल नहीं है ना, उसने कहा है कि जो जापान के हालात हैं वो पेंडेमिक की वजह से। आपने कहा हाँ थोड़े बहुत हैं, लेकिन फिर आपने कहा नहीं है, और वो एविडेंस को यूज किया। उसने ये नहीं कहा कि एविडेंस सही सपोर्ट कर रहा है या सही है गलत है, वो भी उसने बात नहीं की जिस तरह पिछली हमने केस स्टडीज की। डू वी गेट दिस? Low interest rates can be used by Japan's central bank since 2016. Analyze how low interest rates might stimulate an economy. Yeah, this is one part. Analyze might stimulate an economy and evaluate whether the use has been successful in stimulating Japan's economy since 2016. शुरू करें, बताएं मुझे। तो इंटरेस्ट रेट होगा तो इस तरह नहीं, शुरू करें। हाँ लिख रहे हैं, लेकिन पहले जरा वो बना लेते हैं, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। हाँ, लो इंटरेस्ट रेट्स का पहले तो सादा इंपैक्ट बताते हैं ना। क्या ख्याल है? पहले तो आप किस तरह स्टिमुलेट करता है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे उनका सारा इंपैक्ट बता देंगे। ठीक है, बता दूं। इंटरेस्ट रेट कम, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम तो बोरोइंग ज्यादा, बोरोइंग ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो एडी ज्यादा, एडी ज्यादा तो जीडीपी ज्यादा, और इसके अंदर क्या फिट कर देंगे? मल्टीप्लायर भी फिट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कम तो रिटर्न ऑन सेविंग्स कम, रिटर्न ऑन सेविंग्स कम तो सेविंग्स कम, सेविंग्स कम तो कंजम्पशन ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा तो एडी ज्यादा। एक और लिंक है, जल्दी से बताएं एक्सचेंज रेट के थ्रू। हॉट मनी फ्लोज, इंटरेस्ट रेट कम तो हॉट मनी फ्लोज कम, डिमांड ऑफ करेंसी कम, डिमांड ऑफ करेंसी कम तो करेंसी डेप्रिशिएट, करेंसी डेप्रिशिएट तो एक्सपोर्ट प्राइसेस कम और इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट्स कम, जिसकी वजह से जीडीपी ज्यादा। मल्टीप्लायर इस पे भी लगा। इसमें से कोई से दो बता दे, बहुत पूरा चेन ऑफ एनालिसिस बता दे। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट कम करना, पहली बात क्या है, ये हमने आंसर कर दिया, हाउ इंटरेस्ट रेट्स माइट स्टिमुलेट एन इकोनॉमी, ये हमने बता दिया। इंजेक्शन लीकेजेस की तरफ से भी जा सकते हैं, एडी की साइड से भी जा सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये सबको क्लियर है? चेन ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है। हाँ जी, ले जी। इंटरेस्ट रेट कम होने से सीन ऑन हो गया है, पहले ऑन तो करें ना सीन। जी, इंटरेस्ट रेट कम करने से सीन ऑन हो गया, एविडेंस लिख लिया सबने? जल्दी करें स्पीड मारें।
2016 में इंटरेस्ट रेट्स गिराए हैं अगलों ने, है ना, और 2017 में हम देख सकते हैं कि क्या हुआ। 2017 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी है, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी। ये बात समझ आई? तो 2017 हमारे लिए बहुत की एविडेंस। और थोड़ा सा नेशनल डेट भी कम हुआ। क्या ख्याल है? तो इंपैक्ट आया कि नहीं आया? साल बाद उसका इंपैक्ट आया। थोड़ा सा मैं टाइम लैग का जिक्र करके मैं बताऊंगा कि 2017 में एविडेंस उठाएंगे हम कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ी है, ठीक है, 2017 का एविडेंस। फिर मैं क्या बताऊंगा कि रिटेल सेल्स भी बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ा है। चौथी क्या चीज थी? बस ये। और ये एविडेंस दे देंगे, यहां से इनको कोट कर दूंगा 3.1, 1.9 और 2.2। तो 2017 में ये लग रहा है कि इसका इंपैक्ट आया है। समझ आई बात की? इनके साथ न्यूमेरिकल्स भी बताने हैं, ऊपर से उठा के, इन तीनों के। इज दिस क्लियर? और कुछ बताएं कि इकोनॉमी स्टिमुलेट हुई है कि नहीं हुई? Despite the stimulus, growth rate has a chance of economic activity may stagnate even for nations more restrictive such as lockdowns, combat recurrence of pandemic। ठीक हो गया। और कुछ है? नहीं। इधर कुछ है? नहीं। इधर कुछ है? नहीं। बस यही है, 2017 वाला एविडेंस आ गया। ठीक है, आ जाए जी। थोड़ा सा ऊपर से भी एविडेंस उठाना है और थोड़ा सा अपना नॉलेज भी। नहीं जी, इंटरेस्ट रेट फारिग है। इंटरेस्ट रेट से कोई फायदा नहीं हुआ जापान को। एक तो हमने ऑब्जर्व किया अपने अपना नॉलेज, क्या? टाइम लैग। टाइम लैग। दूसरा, दूसरा क्या है? डिफ्लेशन की वजह से मेरे जहन में आ रहा है क्या? कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या होगा? पहले ही कम है। कंज्यूमर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर कम है तो जितना मर्जी आप इंटरेस्ट रेट को नीचे कर लें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट नहीं होती। ये भी एक ऑब्वियस सी चीज नजर आ रही है। और बताएं कुछ अपने नॉलेज में क्या है। एक तो टाइम लैग है, साल लगा है उसको, 2016 में कम हुआ और साल लग गए 2017 में स्टिमुलेट करने में। दूसरा, डिफ्लेशन की वजह से इन्वेस्टर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम है। तीसरा, ऑलरेडी लो, ऑलरेडी लो। इन्फ्लेशन का कहीं दिया मैं कुछ? इन्फ्लेशन का कोई नहीं ना दिया हुआ। कोई ना, क्योंकि मैं कह रहा था कि अगर ये जीडीपी जो बढ़ा भी है उसमें इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा कि नहीं, उधर तो डिफ्लेशन हो रही है, फिर तो ये रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव ही है। डिफ्लेशन हो रही है तो रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, ठीक है। अब आ जाए एविडेंस। एविडेंस जी कि ये नहीं चलेगा काम। अब एविडेंस पे आ जाए। ये हमारा अपना नॉलेज था थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ रहे हैं क्या है? ये हमारा अपना नॉलेज के क्या काम, किस तरह काम करेगा। फिर ये हमने उठाया एविडेंस सारा कि काम किया है उसने। फिर हमने कहा काम नहीं करता, ये एक दो वजूहात हैं जापान के साथ लिंक करके। फिर हम अब एविडेंस उठा रहे हैं कि ये क्यों नहीं किया जापान के केस में। क्यों नहीं किया भाई जापान के केस में? आखिरी स्टेटमेंट थी। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्दर रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स आ रहे हैं और फर्दर लॉकडाउन्स लग रहे हैं। फिर वही बात ऊपर वाली कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फर्दर गिरेंगी। एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी गिर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी तो गिर रहा है। आईएमएफ ने कहा कहा था ये इतने इतने से श्रिंक कर गई इकोनॉमीज, इतनी बड़ी बड़ी जो कि मेन उसके बायर्स हैं, तो एक्सपोर्ट्स और गिरेंगे। आई बात समझ में? ये एक दो एविडेंस ले लें ऊपर से।
ट्रेडिंग पार्टनर्स फारिग हो रहे हैं और ऊपर इकोनॉमिस्ट ने जो बोला है, कंक्लूजन दे दें। वर्डिंग क्या है क्वेश्चन की? सब कुछ तो हमने लिख ही लिया, अब लिखना है। जी तो 8 मार्क, 8 मार्क, 8 मार्क है तो 8 मार्क कम तो नहीं है। 12 और 8 नंबर में कितना फर्क है? अभी इतना फर्क नहीं है, लिखना पड़ेगा। और 40 मिनट्स में आप क्या करेंगे? ये तो 2-2 मिनट के थे ये। ठीक है, इसमें और इसमें ज्यादा लिखना है, 8 मार्कर में लिखना पड़ेगा। evaluate whether their use has been successful। एंड पे कंक्लूजन देना पड़ेगा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। लग नहीं रहा कि सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स और बहुत सारे हैं, जिसमें मेन रोल पेंडेमिक का है। नॉट सक्सेसफुल। क्या ख्याल है? पूरा तो कर लिया हमने, देखें इसको। 4 मार्क्स फॉर थ्योरी रिस्पॉन्स, 4 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ। आधे नंबर अपनी अकल के, आधे नंबर डेटा के से। In theory, low interest rate would boost the economy by encouraging consumers and investors to take more risks when borrowing। ये तो हमने बहुत डिटेल में। डिस्करेज सेविंग, इंक्रीज्ड कंजम्पशन, ये भी हमने बहुत डिटेल में, मुफ्त के 4 नंबर। इंकरेज बोरोइंग फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट्स, कितने नंबर दे रहे हैं भाई? ये सब हो तो गई है बात। पॉलिसी appears to be have worked best in 20 when industrial production and sales improved significantly or highest economic growth rate year on year। ये बात भी हमने कर ली, समझ आ गई बात की। Fall in exports, trade wars, high levels of public debt have continued। ठीक है, made worse by कोरोना पेंडेमिक। इन चीजों ने खराब कर दिया। बस, बहुत आसान है भाई, ये तो केस स्टडी बहुत आसान है। हाँ जी, आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल? इससे आसान कुछ देखा कभी जिंदगी में? हो क्या गया? अब लिख लिया पूरा इतनी डिटेल में। लिखना है, अभी भी लिखना है, वो तो हम शुरू से ही लिखते थे। अब तो मार्क्स स्कीम भी देख ली है वैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किधर? कल? कल मॉक तो नहीं है? कल है मॉक है? और किस टाइम पे? ठीक है, तो अगर क्लास हुई कल तो रिवर्स में चलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से शुरू करें, एफडीआई या कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक क्वेश्चन करते हैं, और है कोई 20 मार्क करते हैं, लिखते हैं कल। ठीक है, आराम से डिटेल में अच्छा सा एक सवाल लिखते हैं। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं। फिर पॉलिसीज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैक्रो के ये 3 सवाल हमने करने इस वीक के अंदर अंदर लिख के। ठीक है, चलो यहाँ लगती है आज की ब्रेक।